Okay, today, okay, today I am going to start a new chapter, cost of capital. ठीक है? कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है आज समझेंगे, लिखेंगे नहीं. ठीक है, सम्स हम लोग लास्ट में करेंगे. एट द एंड ऑफ द क्लास हम लोग दो तीन सम्स करेंगे. पहले समझेंगे कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. टू रन द कंपनी to run the company, a company required what? Fund. A company require fund. Agree? Yes, sir. To run the company required fund, and the fund taken by the company from the different source. I have not taught which type of source. I am telling the company required fund to run its operation, and the fund taken by the company invested into different projects. ठीक है? And the fund invested by the company into different project which are having higher NPV. The projects which are having higher NPV मतलब क्या? प्रॉफिट ज्यादा या प्रॉफिट कम? हायर एनपीवी, व्हाट डज इट मीन? प्रॉफिट ज्यादा या प्रॉफिट कम? प्रॉफिट ज्यादा. प्रॉफिट ज्यादा. ज़्यादा. दैट द कंपनी higher NPV that will create the shareholders wealth. Understood? That will create the shareholders wealth. Obviously company will want to take the project which higher NPV, or higher IRR. What the term IRR means? Internal rate of return. Internal rate of return. Sir, we will discuss the internal rate of return in capital budgeting section. कैपिटल बजटिंग में हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि व्हाट इज इंटरनल रिटर्न. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी समझ लीजिए रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न. कंपनी विल इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट हैविंग higher rate of return. Agree? Yes, sir. In the meantime, what company will try to minimize its cost of borrowing. Should be minimized. Yes, sir. Yes, sir. Cost of borrowing मतलब cost of capital. Cost of capital should be minimized. हम लोग इसको क्या बोलते हैं? केसी मतलब cost of capital. ठीक है, the whole chapters focus on this part, cost of capital. The whole chapter focuses on this part, cost of capital. The company wants to take certain fund from the different sources with the minimum cost of capital. Understood? Okay. What are the sources?
of sources of fund broadly there are two sources, equity Equity. and Debt. debt. Equity and debt. Equity are two types, एक preference share Equity. और equity share. It is better to write share. ठीक है. डेप्ट मतलब क्या है? बोरोइंग. If borrowing from market, then it is debenture. If borrowing from the financial institution, then it is called bank loan. If the fund taken from the market is called debenture. Debenture मतलब क्या सर? एक टाइप का लोन एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट, a type of instrument just like a loan, but the loan is taken from where? Market. Okay. Bank loan, the same, having same property, but it is taken from market or financial institution. Financial institution, bank, NBFC. In the same para, preference share and equity share. ठीक है? Preference share and equity share. Preference share and equity share are two types of share, two class of share. Equity share में क्या होता है सर? Investors are having high risk high, return high, voting power. Understood? Risk high, return high, voting power. प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है सर? इन्वेस्टर पे रिटर्न फिक्स्ड. In people invest in preference share. People invest in preference share, get dividend, fixed amount of dividend. ठीक है? तो रिटर्न फिक्स्ड मतलब कंपनी का रिटर्न या इन्वेस्टर का रिटर्न? इन्वेस्टर का रिटर्न. एग्जैक्टली. रिटर्न फिक्स्ड. अगर रिटर्न फिक्स्ड है तो रिस्क मिनिमम. रिटर्न फिक्स्ड है तो रिस्क मिनिमम और नो वोटिंग पावर. ठीक है? हम लोग इसका थ्योरी पढ़ेंगे बुक से, बट मैं एक ओवरऑल जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ. ठीक है? हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे इसका. अंडरस्टूड? Okay. Definition of cost of capital. Definition of cost of capital. सर cost of capital का definition एग्जाम में पूछने वाला नहीं है. Just as a normal thing, cost of capital is a rate. Cost of capital
is a rate at which company choose the investment decision. Because if the cost of capital is 10%, example, if the cost of capital is 10%, whether the company accept the project of having IRR of 8%. If the cost of capital is 10%, whether the company should accept the project having IRR of 8%. No. 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 Obviously, cost of capital is a hurdle that a company should achieve minimum cost to earn the wealth for the shareholder, at the same time to meet the obligation from debenture. Yes. Okay. Cost of capital is an integral part of investment decision. इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको समझ में आ रहा होगा. इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसके बेस पे इन्वेस्टमेंट होता है. ठीक है. As it is used to measure the worth of investment proposal, it is used as a discount rate in determining the present value of future cash flow with capital projects. ठीक है सर. सर मेरा केसी क्लियर है. केसी क्या बोलना चाह रहे हैं? केसी क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं? केसी इज इक्वल्स टू, मैं बोल दिया हूं 12%. व्हाट डज इट मीन? Cost of capital 12%. कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 12%. मतलब कि 12% इज अ नंबर जो मिनिमम मुझे अचीव करना पड़ेगा टू meet the minimum requirement of equity shareholder, at the same time to pay the interest to the venture holder. Understood? 12%. अगर यहाँ पे 500 जा रहा है प्रोजेक्ट, मेरा 500 जा रहा है यहाँ से प्रोजेक्ट, 300 आ रहा है, 100 आ रहा है, 50 आ रहा है, 70 आ रहा है. Understood? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4 साल का प्रोजेक्ट है. 500 जाएगा, 500 करोड़ जाएगा, 300 करोड़ आएगा, 100 करोड़ आएगा, 50 करोड़ आएगा और 70 करोड़ आएगा. ठीक है. Keeping in mind the company's cost of capital is 12% written in the board. Whether the project should be accepted or not. सर अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, सुनिए इधर, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ 0 पे, तो मेरा ये फ्यूचर कैश फ्लो है, आने वाला. अगर मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल के, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के कुछ कॉन्सेप्ट होता ही नहीं फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. अगर किसी अकाउंटेंट से पूछ रहे होते, बता प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सर वो बताता मेरा जा कितना रहा है 500, आ कितना रहा है 300, 400, 450 और 520. अरे 20 का प्रॉफिट दिख रहा है ना आपको? 20 का प्रॉफिट, तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड. बट अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पूछेंगे तो सब वो क्या करेगा, 0th पॉइंट ऑफ टाइम में सारा पीवी को पुल करेगा, सारा पीवी को पुल करेगा एट व्हाट रेट? 12%. पुल करके बताइए क्या आ रहा है?
Sent. आ रहा है क्या आंसर? चेक कीजिए. प्लीज रिप्लाई कीजिए. आ रहा है क्या आप लोग का आंसर? मेरा आ रहा है 72.35 नेगेटिव. ब्रिजेश आंसर आ रहा है क्या? नेहा समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर. ओके. अगर किसी को फ्रिक्शन हो रहा होगा तो ये मैंने किया है 300 डिवाइडेड बाई 1.12, 100 डिवाइडेड बाई 1.12 का स्क्वायर, 50 डिवाइडेड बाई 1.12 का क्यूब, 70 डिवाइडेड बाई आ रहा है. ठीक है सर. मैंने क्या किया अगर कोई अकाउंटेंट होता तो वो बोलता प्रॉफिट है 20 करोड़ का, द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, बट कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, considering the time value of money for a finance person, he will tell कि सर जो आ रहा है, जो 300 150 70 जो आ रहा है सर, आज आ रहा है क्या? नहीं है वो तो आज, वो तो आ रहा है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद. तो how the money can be equivalent at the present, how the money should be equal to the present, how the money should be compared with 500, जबकि वो पैसा आ रहा है आफ्टर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल. सर जो 4 साल बाद जो पैसा आ रहा है वो आज का डेट में उसका वैल्यू बताइए. सर 4 साल बाद जो मेरा जो 70 करोड़ आ रहा है वो आज का डेट में वैल्यू कितना है? 44 करोड़. अंडरस्टूड? 4 साल बाद जो पैसा 70 करोड़ आ रहा है वो आज का डेट में वैल्यू कितना है? 44 करोड़. आज का भाई, आज का डेट में अगर मुझे 44 करोड़ दे देंगे ना तो मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगा जहां 12% का ब्याज मिल रहा होगा, तो वो तो 70 करोड़ बन ही जाएगा. हाँ. ठीक है. आज का डेट में अगर मुझे 35.59 दे देंगे ना तो मैं 12% से कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा तो ऑब्वियसली 50 करोड़ बन ही जाएगा. इसका मतलब आज का डेट का 35 करोड़, 35.59 करोड़ इज इक्विवेलेंट 3 साल बाद का 50 करोड़. अग्री? जी. यस यस यस. हाँ. तो वो बताइए, वो जो 50 करोड़, अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि बताइए वो 50 करोड़ का जो आने वाला है 3 साल बाद, बताओ आज का वैल्यू क्या है उसका? आज का वैल्यू है 35.59. अंडरस्टूड? ठीक है. तो ये एक चार्ट है. ठीक है, इसको एक बार, ठीक है, हम लोग लिखना बाद में करेंगे. अगर हमको पूछा जाए कि एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट इज इक्वल्स टू, क्या होगा सर? एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज इक्वल्स टू पीवी ऑफ CF0 plus CF1 plus CF2 dot CFN
देखिए आ रहा है क्या ये समझ में? NPV of a project is equals to cash flow of today plus cash flow of after 1 year, सबका PV of cash flow of second year dot 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 PV of cash flow of nth year of nth period. ठीक है, तो सर इस अभी हम लोग क्या किए सर, हम लोग किए 500 1 प्लस आर प्लस ऑब्वियसली माइनस में है, ठीक है, उसके बाद 300 150 70 300 150 70 देख लीजिए 1 प्लस आर का पावर में स्क्वायर बाई 1 प्लस आर का पावर में क्यूब प्लस 1 पाई आर का पावर में 4 1 प्लस आर का पावर में 5। सर पहले 500 में डिस्काउंट नहीं लगेगा ना, उधर से जाएगा। 500 तो प्रेजेंट वैल्यू है। सॉरी वेट, इक्वेशन गलत है। इज इक्वल्स टू कितना था कैश फ्लो 400 500 नहीं ये वाला 300 150 70 300 300 100 300 150 70 1 प्लस आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर क्यूब प्लस 1 प्लस आर का पावर में 4 होल्ड आ रहा है क्या? सर माइनस 500 माइनस 500 भी तो यहीं किए थे। ऑब्वियसली जो कैश फ्लो है, कैश इनफ्लो, उसको प्लस करेंगे, जितना भी कैश आउटफ्लो है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सर हम लोग का मेन क्या है सर? ये आर निकालना ही इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आ रहा है समझ में? आर निकालना ही इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी को पता तो चलना चाहिए कि उसका कैपिटल का कॉस्ट क्या है, ठीक है। द कॉस्ट, आप पढ़िए इसको, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ the cost of capital is an integral part of investment decision as it is used to measure the worth of investment proposal। आ रहा है समझ में? हाँ सर। it is used as a discount rate in determining the present value of future cash flow associated with capital project। ये आ रहा है समझ में? बीजे सबको समझ में आ रहा है ये वाला? यस सर। हाँ। Conceptually, it is the minimum rate of return that the firm must earn on its investment so as to leave the market price of its. It is the minimum rate of return that the firm must earn on its investment so as to leave the market price of its.
अगर ये तो मिनिमम रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, इट्स अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न द कंपनी शुड अचीव। अगर ये रेट ऑफ रिटर्न मिनिमम नहीं होता, इससे कम हो जाता, तो प्रोजेक्ट नेगेटिव होता या पॉजिटिव हो जाता? निगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होता तो शेयर होल्डर्स वेल्थ विल बी डिस्ट्रॉय और क्रिएटेड। डिस्ट्रॉयड। अगर Right. शेयर होल्डर वेल्थ डिस्ट्रॉयड तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज शुड बी डिक्रीज, शुड बी फॉल और इंक्रीज? फॉल। Till fall. वही बोल रहा है। It is a minimum rate of return that firm must earn on its investment so as to leave the market price of its, ठीक है? It is also referred as to cut off rate. इसको कट ऑफ रेट बोल दीजिए, हर्डल रेट बोल दीजिए, टारगेट रेट बोल दीजिए, सारा इक्वल है, ठीक है? डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, ठीक है? डिफरेंट राइटर का है, आप लोग पढ़िएगा डिफरेंट राइटर क्या बोल के रखा है, ठीक है? मुझे एक जनरल बेस बनाना था इसका। ओके, importance of cost of capital. What are the importance, sir? Importance तो आपको बता दिया था मैंने. It helps to make decision of investment. Capital budgeting decision. It helps to take the capital budgeting decision, capital or investment evaluation. Understood? Cost of capital is usually taken as the cut-off rate or a minimum required rate for an investment project. In the NPV method, an investment is accepted if it has the positive NPV. The project's NPV are calculated by discounting its cash flow by the cost of capital. ठीक है? ओके, किसी को अगर फ्रिक्शन हो रहा होगा तो प्लीज बताइएगा। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. Cost of capital plays an important role in designing the capital structure. ठीक है? Debt policy of a firm. अगर cost of capital is a mix of debt and equity. Understood? Cost of capital is a mix of debt and equity. Yes, sir. अगर assume कीजिए a company जिसमें सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर ही है, there is no debt. ठीक है? अ कंपनी जिसमें सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर ही है, देयर इज अ नो डेप्ट. देयर इज नो डेप्ट. तो अगर इक्विटी शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, imagine a company having only equity shareholder and the required rate of return for equity shareholder is 12%. What is the cost of capital of the company? 12%. 12%. 12%. Common sense. Say the company में पहले इक्विटी शेयर होल्डर था, अब कंपनी को ग्रो करना है, कंपनी ने डेट लिया. डेट लेने पे मैं एक कॉमन सेंस का बात कर रहा हूँ. डेट लेने पे अगर मेरा डेट 12% से कम होगा या फिर 12% से ज़्यादा होगा? अगर मेरा डेट 12% से कम होगा या 12% से ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा सर. अगर ज़्यादा, आप सोचिए, आप इस तरह से सोचिए, डेट मतलब डिबेंचर होल्डर, ठीक है? डेट मतलब डिबेंचर होल्डर, वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है इक्विटी शेयर होल्डर से कि कम रिस्क ले रहा है?
ज्यादा। कम ज्यादा लेगा रिस्क, रिस्क वो। इक्विटी शेयर होल्डर से कम रिस्क लेगा, हाँ कम लेगा वो। ठीक है। अगर लिक्विडेशन का टाइम आएगा ना, तो बैंक वाले लोग, बैंक मतलब डिबेंचर, डिबेंचर को बताया मैंने, बैंक भी हो सकता है, मार्केट भी हो सकता है, ठीक है। अज्यूम बैंक वाले लोग क्या करेंगे पता है, पहले जाके अपना हक ले लेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर लोग से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, डेप्ट वाले लोग से एग्रीमेंट हुआ है कि वो 8% का ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। आ रहा नहीं समझ में? तो हाँ सर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोग का रिस्क ज़्यादा है, ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी क्या होगा, ज़्यादा। इसका मतलब डेप्ट होल्डर वाले का रिटर्न कम है, अगर उसका रिटर्न कम होगा तो, सॉरी, डेप्ट होल्डर वाले का रिस्क कम है, अगर रिस्क कम होगा तो इसका मतलब ऑब्वियसली है रिटर्न भी कम ही आएगा, ठीक है। से इसका रिटर्न है 8%, अंडरस्टूड। रिटर्न है, रिटर्न बोल रहे हैं, कॉस्ट है 8%। तो मैं गया के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी, के ई इज इक्वल्स टू 12%, कॉस्ट ऑफ डेप्ट के डी इज इक्वल्स टू 8%, ठीक है। के डी 8%, के डी 8%, के ई क्या है 12%। व्हाट देन कॉस्ट ऑफ द कंपनी, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, सॉरी क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मस्ट फॉल बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन 8% एंड 12%। प्लीज सेटिस्फाई। हाँ सर। ब्रिजेश समझ में आ रहा है? हाँ मुझे सर लगता है कॉस्ट ऑफ जो इक्विटी अगर 12% पूरा ही रिकवर करता है तो दोनों का हो जाएगा, डेप्ट भी का हो जाएगा, वो भी आ जाएगा। नहीं, एक बार फिर से बताइए क्या बोला आपने? मैं बोला कॉस्ट अगर 12% का रिटर्न आता है पूरा, तो दोनों हो जाएगा ना उसमें, तो फिर नहीं, कॉस्ट ऑफ मेरा कैपिटल। मेरा मैंने को अभी पूछा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी वाले लोग डिमांड कर रहे हैं 12%, डेप्ट वाले लोग डिमांड कर रहे हैं 8%, तो कंपनी का कॉस्ट इज मस्ट बी फॉल बिटवीन 12% एंड 8%, यस यस। ठीक है। मस्ट बी फॉल। अब वो 12% और 8% में कौन क्या होगा, मेरे मेरे एग्जांपल से मुझे, मैं अजम्पशन ले रहा हूँ 10%, ठीक है। सर इसको निकालते कैसे, वो निकालना इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोग कितना, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कंपनी के लिए महंगा कॉस्ट कौन है, इक्विटी या डेट? कंपनी के लिए महंगा कॉस्ट कौन है, इक्विटी या डेट? इक्विटी। इक्विटी। कंपनी के लिए महंगा कॉस्ट क्या है, इक्विटी। बट कंपनी के लिए सस्ता क्या है, डेट। बट ऐसा तो कोई कंपनी हो नहीं सकता ना जिसका जो डेट होल्डर ही है और इक्विटी होल्डर नहीं है। द कंपनी मे हैव ओनली इक्विटी शेयर होल्डर। अगर कंपनी के पास इक्विटी शेयर होल्डर है, अगर कंपनी के पास सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर है, तो उसका केसी कितना होता, 12%। हाँ, अगर केसी 12% होता तो यहाँ पे मेरा 12% आता, आता कि नहीं आता? हाँ सर। यहाँ पे सारा मेरा 12% आता। अब 12% का 12% पे अगर 12% में अगर ये वाला पोर्शन आ रहा है 72.35 आ रहा है ना, 12% में 72.35, ऑब्वियसली अगर ये 10% होता, अगर डेट भी ले लेते तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता, घट जाता, 10% हो जाता।
अगर डेट भी ले ले तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% हो जाता, होता कि नहीं होता? हाँ, अगर ये 10% होता तो मेरा, अगर ये 10% होता तो ये मेरा 72 जो नेगेटिव आया है, इससे ज़्यादा नेगेटिव आता या कम नेगेटिव आता? कम नेगेटिव आता। कम नेगेटिव आता, अप्रोक्स एग्जाम्पल 60.28 आता, ठीक है, 60.28 आता। इन द सेम टाइम, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये वाला हम पुल कर रहे हैं एक दूसरे से, 300 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का पावर में 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का पावर में 2। सर अगर ऐसा है, आप एक बार चेक करके देख लीजिए, अगर 10% होता, अगर 10% होता और अगर 12% होता, 10% होता है और यहाँ पे एज्यूम 12% होता, तो ऑब्वियसली से बात है, ये वाला जो डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर अगर यहाँ पे, यहाँ का डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो ये कैश फ्लो क्या होगा, कम या ज़्यादा? अगर ये हाई होगा तो ये क्या होगा, कम या ज़्यादा? कम। कम। आ रहा है क्या समझ में कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। आ रहा सर, आ रहा सर। अगर यहाँ का डिनोमिनेटर कम हो रहा है, ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली कैश फ्लो क्या आएगा, कम होगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे मैं 12 करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 10 कर दिया तो ऑब्वियसली कैश फ्लो क्या आएगा, ज्यादा। हाँ। यस। तो पीवी ऑफ कैश फ्लो शुड बी ज्यादा, अगर 10% से करेंगे तो। यस। अगर मैं 10% से करूंगा तो पीवी ऑफ द कैश फ्लो शुड भी ज्यादा। हाँ। ठीक है, तो इट मे बी पॉसिबल, अगर हमारा कॉस्ट ज्यादा रहेगा तो वी विल एंड विथ पॉजिटिव एनपीवी। यस। तो मेरा बोलने का क्रक्स ये है, मेरा बोलने का क्रक्स ये है कि कंपनी कैन नॉट ये नहीं बोल सकती है कि सर डेब्ट नहीं लेना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोन से क्या होता है, हमारा कॉस्ट क्या होता है, कम जाता है या घट जाता है, कम जाता है या बढ़ जाता है, कम हो रहा है, कम हो जाता है, because equity shareholder is taking the full risk, they will definitely demand the higher return. At the same time, debt holder is not taking risks, is not taking less risks than equity shareholder, then definitely it will demand the lower return. Understood? यस सर। It will demand the lower return. तो ये वाला ऊपर टानेगा और ये वाला नीचे टानेगा, ये दोनों का ऊपर टानेगा नीचे टानेगा, कट कुट के कॉस्ट ऑफ क्या होगा, 10%। इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ऑब्वियसली कॉस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर मैं देखूंगा ग्राफ बनाऊंगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मेरा कॉस्ट अगर डेप्ट रहेगा ना तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ये मेरा WD, ये KC का ग्राफ है, देख लीजिए, ठीक है, एक समय बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जो KC मेरा बढ़ेगा नहीं, गिरना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, कितना डेप्ट ले, कितना इक्विटी ले, सब हम लोग कहाँ से करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से, सर डिसीजन से। कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, हाउ मच डेप्ट,
एंड इक्विटी, यही तो है. हाउ मच डेप्ट एंड इक्विटी, इक्विटी कितना ले, इक्विटी कितना ले, and the debt policy of the firm. The average cost, the decision about the debt equity mix in the capital structure is taking the reference to the impact of the same on the average cost of capital. Debt कितना लेना है, equity कितना लेना है, is definitely impact the cost of the capital. Debt helps to save taxes. Debt helps to save taxes. ये जो है ना, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा. How the debt helps to save taxes. As interest of the debt is a tax deductible expenses. लीजिए बोल भी दिया है. हम लोग जो डेट का इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, तो क्या इंटरेस्ट का, जब डेट का इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, तो क्या ये डेट का इंटरेस्ट पीएल में डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे. हाँ yes, sir. करेंगे. करेंगे ना. अब Yes. इमेजिन कीजिए ये पीएल है, इमेजिन कीजिए ये पीएल है. पीएल आजकल ऐसे नहीं बनता, लेकिन एग्जांपल यहाँ जीपी, यहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं? हाँ. इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं? अगर सोचो रहेगा. जीपी अगर 100 है, ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस से 60 है, ये 20 है, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? 40. यही आ रहा है ना, 20 आ गया. यही आ रहा है ना. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 आ रहा है. तो सर अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता, ये एग्जांपल कीजिए ये नहीं है, तो मेरा प्रॉफिट कितना आता? 40. टैक्स अगर से 10% है, तो मैं कितना टैक्स दे रहा होता? 4. ठीक है. अब मेरा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना है? 20. टैक्स रेट से 10% है, तो मैं कितना टैक्स दे रहा हूँ? 2. 2. तो इट हेल्प्स टू सेव टैक्स. हाँ. ठीक है. इट हेल्प्स टू सेव टैक्स कितना? 2 रुपीज. अंडरस्टूड? इन दोनों का बीच का डिफरेंस 2. अंडरस्टूड? तो एक आपको दिख रहा है ना, एक तो डिवेंचर कितना अच्छा है. डिवेंचर अच्छा है कि वो तो पहला बात लो कॉस्ट में मिल जा रहा है, ठीक है. दूसरा कितना अच्छा है कि वो लो कॉस्ट में भी मिल रहा है, ऊपर से टैक्स का सेविंग भी करा रहा है. उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट टैक्स सेविंग्स. इंटरेस्ट टैक्स सेविंग्स, इसको बोलते हैं आईटीएस. और कहीं किसी बुक में आपको मिलेगा इंटरेस्ट टैक्स शील्ड. इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, आईटीएस. तो हमारा इधर आईटीएस कितना है? हमारा इंटरेस्ट टैक्स शील्ड कितना है? 2 रुपीज. प्लीज इसको कोई ये टू नहीं समझना है, ये 2 है. डिफरेंस बिटवीन 4 and 3, 4 and 2. तो आईटीएस कितना है? 2. इसका मतलब मेरा नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है? मेरा नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है टोटल? 20 लेस आईटीएस. तो आईटीएस कितना? 2. तो 20 माइनस 2 18. हाँ. नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है? 20 माइनस 2 18. अब समझ में आ रहा है आपको? डेट Yes.
Debt helps to save taxes as interest on debt is a tax deductible expenses. The interest tax shield, आ रहा है समझ में? Interest tax shield. As a result of use of debt in a capital reduce the overall cost of the capital, but it also increases the financial risk of the firm. Obviously सब बात है कि इक्विटी शेयर होल्डर को मजा आएगा डेट लेने में. इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी. हु इज द ओनर? इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी. डेट के कारण उसको इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क होगा कि नहीं होगा? डेट के कारण इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क होगा कि नहीं होगा? होगा. ठीक है ना? क्यों रिस्क होगा सर? आज का डेट में अगर कंपनी बंद हो गई तो मेरा हक, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर वाले का हक से पहले कौन हक लेने आ जाएगा? डेट होल्डर लोग. तो उन लोग का डर होगा. उसको बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल रिस्क. उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिस्क. इक्विटी शेयर होल्डर लोग को क्या है? एक फाइनेंशियल रिस्क है कि अगर फर्म डूबेगा ना तो मेरे हक से पहले डेट वाले लोग हक लेने आ जाएंगे. अंडरस्टूड? तो भाई हक लेने आएंगे, उसी के कारण तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ले रहे हैं ना. कॉस्ट क्यों कम है? क्योंकि रिस्क कम है. हाँ. ठीक है. On deciding the proportion of the debt and equity in the capital structure, the firm aims to maximize the value of the firm value by minimizing the overall cost of the capital. आ रहा समझ में? हाँ सर. ठीक है. अप्रेजल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अप्रेज होता है ना. द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस of the top management can be appraised by using cost of capital. अगर सोचो CFO बड़ा डायरेक्टर लोग बैठा हुआ है, वो लोग क्या चाहेगा कि डेप्ट ही लो, सबसे भर के डेप्ट लो. भर के डेप्ट लो तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा तो कंपनी का कॉस्ट कम तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे. मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा? कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा. हाँ. तो ऊपर वाले जो CFO लोग को का वाहवाही आएगा कि वाह क्या हर कंपनी को प्रॉफिट में लेके जा रहा है. लेकिन कंपनी को प्रॉफिट में लेके जाने से पहले आप इतना डेट लेके रखे हैं. द आईब्रोज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर शुड बी रेज्ड. द आईब्रोज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर शुड बी रेज्ड कि भाई इतना डेट ले लिया है मेरा. अगर इतना डेट ले लिया है, कंपनी के पास कौन सा रिस्क आ गया है ज्यादा? फाइनेंशियल रिस्क. अंडरस्टूड? कंपनी के पास सबसे ज्यादा कौन सा रिस्क आ गया है? फाइनेंशियल रिस्क. कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट तो कम गया है पर कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया है. ठीक है. तो कॉस्ट कम होगा तो टॉप मैनेजमेंट को वाहवाही मिलेगा. टॉप मैनेजमेंट कैन बी अप्रेज्ड by using cost of capital. The performance of the project or the business, that is the return from the business, is compared against the cost of capital to evaluate the profitability of the project investment. If the management has been able to earn higher return overall cost of the capital, the management will be treated as efficient and vice versa. अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा. कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा तो कंपनी मैनेजमेंट तो सबको क्या बोलेगी? कंपनी का मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है. ठीक है. ये सारा खेल किसका है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, कॉस्ट का. डिजाइनिंग द ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी. क्रेडिट सेल कैन बी इंटीग्रेटेड. Credit sale is an integrated part of the today's business, and the decision of the credit period will be to be allowed to the customer is an important one. To achieve
to achieve the optimum credit policy, the cost of allowing credit period is compared against the benefit or profit earned by providing credit to customer. While doing this, cost of capital is used to arrive the present value of the cost benefit ratio. कंपनी जब क्रेडिट सेल कर रही है, कंपनी क्रेडिट सेल कर रही है, तो कंपनी के पास एक रिस्क है, डिफॉल्टिंग रिस्क. कंपनी क्रेडिट सेल कर रही है, कंपनी क्रेडिट सेल हाँ. कर तो डर क्या है? पैसा डूब जाने का, डेटर से पैसा रिकवर नहीं होगा, तो कंपनी के पास क्या आ जाएगा? एक डिफॉल्टिंग रिस्क आ जाएगा कि डिफॉल्ट हो जाएगा, इसका रिस्क है. तो वो डिफॉल्टिंग रिस्क वायबल है कि नहीं? क्रेडिट सेल पे क्रेडिट पीरियड, the cost of allowing credit period is compared against the benefit of the profit earned by providing the credit to the customer. कंपनी को कितना क्रेडिट पीरियड देना चाहिए, ये डिटरमाइन कैसे होता है? कंपनी का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देके, तो वो उस पे वो कैसे निकलता है? थ्रू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, ये थोड़ा आप पढ़िए, बहुत मोनोटेनस हो गया है. फिर क्या है? डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर है? रिस्क प्रोफाइल ऑफ द प्रोजेक्ट, मार्केट कंडीशन, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन. एक मिनट, सम्स पे आते हैं. ओके, ये वाला एक बार कॉपी कर लीजिए. हेडिंग दीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हेडिंग दीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हेडिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये डायग्राम बना लीजिए एक बार. ये डायग्राम बना के एक बार बताइए. कंपनी फंड उठा रही है फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, और फंड इन्वेस्ट कर रही है टू डिफरेंट प्रोजेक्ट. कंपनी फंड उठा रही है फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. ऑब्वियसली जब कंपनी फंड उठा रही है, कंपनी शुड बी केप्ट इन माइंड कि कॉस्ट कितना हो मिनिमम. और जब कंपनी फंड इन्वेस्ट कर रही है, तो क्या सोच रही है कि कंपनी का ऐसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे कि एनपीवी क्या हो, ज़्यादा. ठीक है, हो गया? चेंज करें? नहीं नहीं, रुकिए. हो गया. ठीक है. जब सोर्स ऑफ फंड, कंपनी पैसा उठा रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसी से रिलेटेड है. सोर्स ऑफ फंड क्या है? सोर्स ऑफ फंड क्या है? सोर्स ऑफ फंड है एक शेयर्स और दूसरा डिबेंचर. एक शेयर्स, दूसरा डिबेंचर. एक शेयर, दूसरा डिबेंचर. शेयर में एक है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा है आपका इक्विटी शेयर. एक है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा है इक्विटी शेयर.
दूसरा है इक्विटी शेयर। इसके कॉस्ट को क्या बोलते हैं? केपी। इसके कॉस्ट को क्या बोलते हैं? केपी। इसके कॉस्ट को क्या बोलते हैं? केई। इसके कॉस्ट को क्या बोलते हैं? केडी। इसके कॉस्ट को क्या बोलते हैं? केटी। केटी। हो गया? ब्रिजेस हो गया क्या? सर 2 मिनट्स ओनली। प्रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट करें। यस। ओके, फिर इस पे आएंगे। हेडिंग दीजिए कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। हेडिंग दीजिए कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ब्रैकेट में केडी। ब्रैकेट में केडी। केडी इज इक्वल्स टू आई बाई एनपी 1 माइनस टी, ये वाला फॉर्मूला। केडी इज इक्वल्स टू, सर विजिबल नहीं है, वो दिख नहीं रहा। KD is equals to interest into 1 minus T by NP, net proceed. I is equals to I is equals to interest, T is equals to tax rate, N is equals to net proceed after flotation cost. Interest per annum. Interest per annum. हो गया? हो गया क्या? हो गया क्या? नेट प्रोसीड आफ्टर फ्लोएशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट। FLOATION, फ्लोटेशन कॉस्ट। F फ्लोटेशन कॉस्ट में दिया ना, नेट प्रोसीड।
ओके से एक डिबेंचर है, एक डिबेंचर है 7% डिबेंचर ऑफ ₹5 लाख issued at the rate of 105, ठीक है। कंपनी इशूड अ 7% डिबेंचर, कितना डिबेंचर इशू की है? 5 लाख रुपया, ठीक है। कितना कितना डिबेंचर इशू की है? 5 लाख। ऑब्वियसली बात है, तो कितना की होगी? 500 डिबेंचर इंटू 100 ईच, यही तो की होगी ना। 500 डिबेंचर इशू की होगी 100 ईच में, ठीक है। लेकिन कंपनी ने कितना में इशू किया है? 105 में। 100, यहाँ देखिए, कंपनी ने इशू किया है कितना में? 5 लाख रुपया का डिबेंचर इशू किया है कितना में? 7% के हिसाब से, मतलब 500 डिबेंचर इंटू 100 ईच, ठीक है। फाइंड कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, फाइंड कॉस्ट ऑफ डिबेंचर if issue price is कितना? नंबर 1 105, नंबर 2 98, नंबर 3 कितना? 100। assume tax rate is 30%। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको? कंपनी 7% रेट से डिबेंचर इशू की है, कितना? 5 लाख रुपया का डिबेंचर, ठीक है। ऑब्वियसली डिबेंचर का आपको प्राइस दे दिया है 100 ईच, 100 डिबेंचर का पर डिबेंचर का प्राइस दिया है 100 ईच। इसका मतलब क्या है कि 500 डिबेंचर इशू किए एट द रेट ऑफ 100। आ रहा है क्या समझ में? हाँ सर। पीजीएस आपको आ रहा है क्या समझ में? सर हाँ, यस सर। कंपनी 500 डिबेंचर इशू किया एट द रेट ऑफ 100 ईच, कितना है? 7% के हिसाब से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पूछा है कंपनी के लिए। कॉस्ट ऑफ किसके लिए? कंपनी के लिए कॉस्ट, ऑब्वियसली बात है ना। अगर कोई टैक्स नहीं होता, सुनिए इधर, अगर कोई टैक्स नहीं होता, इसको इग्नोर कीजिए। अगर कोई टैक्स रेट नहीं होता, कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूं, अगर कोई टैक्स रेट नहीं होता तो 100 का डिवेंचर कंपनी 100 रुपया में ही इशू की है। कंपनी के लिए कॉस्ट कितना पड़ता? मैं पूछ रहा हूं, अगर कोई टैक्स नहीं होता, कंपनी का डिवेंचर कंपनी 100 रुपया में इशू की है, तो कंपनी के लिए कॉस्ट क्या पड़ता? 100 का डिबेंचर 100 में इशू किया, कॉस्ट नहीं पड़ता उसको तो फिर? कॉस्ट पड़ता 7%, जो अच्छा इंटरेस्ट है, 7 इंटरेस्ट, यस यस। ठीक है। कंपनी का 100 का डिवेंचर 100 में इशू करती, तो कंपनी को सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा देना पड़ता, यस अगर टैक्स नहीं रहता। फिर कॉमन सेंस का बात पूछ रहा हूँ आप लोग से।
ठीक है वेदाक्षी, आपसे पूछ रहा हूँ, आंसर दीजिए इसका। वेदाक्षी, हाँ सर। अगर कंपनी का टैक्स रेट है, कंपनी का टैक्स रेट है और कंपनी 100 का डिबेंचर 100 में इशू कर रही है, तो मेरा तो कंपनी के लिए कॉस्ट क्या पड़ेगा, 7 से कम 7 से ज़्यादा? मैं फिर पूछ रहा 7 हूँ, से 7। मैं फिर पूछ रहा हूँ, अगर कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, कंपनी पेमेंट करेगी या कंपनी लेगी? पेमेंट करेगी। पेमेंट करेगी, एग्जैक्टली पेमेंट करेगी। कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, ठीक है। कंपनी का रेट ऑफ, अगर 100 रुपये का चीज़ 100 रुपये में बेची है मतलब कि इशू की है, तो उसका टैक्स रेट होने के कारण, उसका टैक्स रेट होने के कारण उसका इंटरेस्ट कम पड़ेगा या ज़्यादा पड़ेगा? ज्यादा। ज़्यादा। क्यों ज़्यादा? क्योंकि टैक्स हम्म अच्छा, टैक्स तो कम देना पड़ेगा फिर तो उसको, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे बताया क्या? इसके लिए टैक्स के वजह से मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गया या ज़्यादा हो गया? टैक्स के वजह से मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गया या ज़्यादा हो गया? कम हो गया। तो क्यों कम हो गया? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। अंडरस्टूड? मुझे, मैं जो सोचो, मैं मुझे 7% समझ लो, 7,000 रुपया, ठीक है, 7,000 रुपया मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसके कारण मेरा टैक्स सेविंग्स आएगा। मैं पीएल में डेबिट करूँ, उसके वजह से टैक्स सेविंग्स आएगा। टैक्स सेविंग्स आएगा तो मेरा 7,000 रुपया, टैक्स सेविंग्स आएगा तो मेरा 7,000 रुपया क्या होगा? अगर टैक्स सेविंग्स आएगा तो मेरा 7,000 रुपया जो नेट लगने वाला है ना, वो उससे कम लगेगा एक्चुअली में। हाँ। ठीक है, तो अगर मैं अगर आपसे पूछूं ना, मैं अगर आपसे पूछूं कि 100 रुपया का चीज़ 100 रुपये में इशू किया है, बताओ कि अगर टैक्स रेट नहीं है तो इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आएगा? आंसर ही 7 रुपये ही आएगा, सॉरी 7% ही आएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ टैक्स 7% से कम हो जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट टैक्स शील्ड मिलेगा। ठीक है, ओके। ओके, इस पे आते हैं। पहला क्या है? फाइंड द केडी इफ इशू प्राइस कितना है? 105 है कि नहीं? तो इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपया का 7%, 7 रुपीज। 100 रुपया का 7%, 7 रुपीज। देयरफॉर KD इज इक्वल्स टू I 1 माइनस T का पावर में, सॉरी पावर बोलो, 1 माइनस T इंटू P नेट इज इक्वल्स टू I क्या है? 7, 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाई 105, क्या आ रहा है टोटल? तो 7 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 105 इज इक्वल्स टू 4.9 डिवाइडेड बाई 105। बताइए क्या आ रहा है? जीरो पॉइंट 0.466 0.046 is equals to 4.6%. 4.6।
कॉमन सेंस का बात पूछ रहे हैं, देखिए कॉमन सेंस का, टैक्स के कारण बेनिफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है डिबेंचर में? बेनिफिट 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 हो रहा है। 100 का चीज, पहला बात तो टैक्स के कारण बेनिफिट हो रहा था, तो मेरा कॉस्ट कम पड़ रहा होता या ज़्यादा पड़ रहा होता? 100 का चीज 100 का चीज मेरे टैक्स के कारण बेनिफिट हो रहा है, तो मेरा कॉस्ट 7 से कम पड़ रहा होता या ज़्यादा पड़ रहा होता? कम। कॉस्ट अभी अभी कम हो जाएगा। कम हो जाता, ठीक है। हम्म, इसके हाँ, बाद देखिए, मैंने 100 रुपया का चीज कितना में इशू किया है? 105 में। 105। 105 में, डबल बेनिफिट, यस। तो जोर का कम होता, हाँ, कॉस्ट कॉस्ट कम होता। देख लीजिए 7% का डिवेंचर कितना परसेंट में पड़ रहा है कंपनी का? 4.6। 4.6। अंडरस्टूड? हाँ यस यस हाँ, हाँ सर। यस। बिकॉज ऑफ गेन इन इशू प्राइस एंड द इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, हम्म, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन सेंस का बात कर रहा हूँ। कॉमन सेंस, मेरा 7% के कारण 30% का टैक्स शील्ड डलता, बेनिफिट नेट नेट में, बेनिफिट, हम्म, ठीक है, हम्म, नेट नेट में बेनिफिट। लेकिन मुझे यहाँ पे 2 रुपया का लॉस करना पड़ रहा है। इसका मतलब देर इज अ फाइट बिटवीन बेनिफिट और यहाँ पे 2 रुपया का लॉस। हाँ ब्रिजेश, समझ में आ रहा है आपको? देर विल यस बी सर। देर विल बी फाइट बिटवीन 2 रुपया का लॉस और इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का में फाइट चलेगा। तो मेरा नेक्स्ट आंसर क्या आने वाला? 4.6 से कम या 4.6 से ज्यादा? ज्यादा थोड़ा। थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज़्यादा। ठीक है। यहाँ पर तो दोनों मेरे फेवर में था, 105 में भी जा रहा था और आईटीएस भी मिल रहा था। हम्म, यहाँ पर एक मेरे फेवर में, एक मेरे अगेंस्ट में है। हम्म, आ रहे समझ में? तो हाँ देर इज अ फाइट बिटवीन आईटीएस एंड इशू प्राइस। तो ये ऑब्वियसली इससे थोड़ा कम आ जाएगा मेरा, सॉरी इससे थोड़ा ज्यादा आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। निकालिए इसको, सेकेंड नंबर निकालिए। सेकेंड नंबर 7, 1 माइनस टी, प्लीज पूरा खुद से कीजिएगा। 1 माइनस टी इंटू 98, 7 इंटू 0.7 बाई 98, 49 बाई, नहीं 4.9 बाई 98, बता क्या आ रहा है? 5%। 5%। आ रहे समझ में? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे देखिए, इशू प्राइस करने पे लिख लिया ना ये वाला, मैं पूरा अच्छे से लिखवा नहीं रहा हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग लिख पा रहे हैं अच्छे से, समझ में आ रहा है तो। हाँ नेहा, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इशू प्राइस पे नाइदर प्रॉफिट नॉट गेन, हम्म, इशू प्राइस में नाइदर प्रॉफिट नॉर गेन, हम्म, हाँ तो मेरा प्रॉफिट कहाँ पे आएगा? आईटीएस में सिर्फ। हाँ तो हम सिंपल कर सकते हैं क्या? ऐसे ये वाला सिंपल कर सकते हैं क्या? 7 इंटू 0.7, 4.9%। हाँ कर सकते हैं क्या? किसी को हाँ करने का मन नहीं है तो ऐसे भी लिख सकता है, 0.7 इंटू 1 माइनस टी बाई पी नेट इज इक्वल टू 0.7 इंटू 0.7 बाई 100 इज इक्वल टू 4.9%। ऐसे भी लिख सकता है। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ठीक है। आप लोग एक बार घर पे ये लिख लिए ना? हाँ सर। आप लोग एक बार घर में ये सम्स करके रखेंगे, एक बार देख लेंगे सम्स को।
इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1, यहाँ पे देखिए 10% परपेचुअल डेप्ट, डेप्ट का कैटेगरी नहीं बताया मैंने आपको, फील आ रहा होगा परपेचुअल मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट 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 फॉर एवर इंटरेस्ट, Yes, sir. बताया मैंने, परपेचुअल मतलब इंटरेस्ट 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 फॉर एवर इंटरेस्ट, परपेचुअल हो या नॉर्मल हो ट्रीटमेंट सेम होगा। इन केस ऑफ परपेचुअल डेट टैक्स रेट कितना दिया है 35%, डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स एज वेल एज आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स एज वेल एज आफ्टर टैक्स, समझ में आ रहा है, बिफोर टैक्स में ऊपर 1 माइनस टी नहीं करेंगे, अच्छा, हाँ हाँ, बिफोर टैक्स में ऊपर में 1 माइनस टी नहीं करें, प्लीज फॉर्मूला मत लिखना अपने मुंह से कि मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बिफोर टैक्स में के डी इज इक्वल्स टू आई बाई पी नेट होगा, फिर आफ्टर टैक्स में के डी इज इक्वल्स टू आई बाई पी नेट इंटू 1 माइनस टी होगा, प्लीज आई डोंट लाइक, रियली डोंट लाइक दिस टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, सिंपल कॉमन सेंस का बात कर रहा है, आफ्टर टैक्स बोलेंगे तो ऊपर में टैक्स डालेंगे, बिफोर टैक्स बोलेंगे ऊपर में टैक्स नहीं डालेंगे, इज दैट क्लियर? yes sir, ठीक है, यस एज्यूम बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, ठीक है, बिफोर टैक्स को एक बार करते हैं, बिफोर टैक्स डेप्ट इशूड एट पार, पार बोलेगा तो ये इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स इशूड एट पार यही इंटरेस्ट, ठीक है, देख लो, बिफोर टैक्स 10%, यहाँ पे देखिए ये पूरा वैल्यू लेके चला है 1,00,000, मैंने क्या किया था पर शेयर लेके चला था, दिख रहा है आपको, मैं पर शेयर लेके चल रहा था, हाँ हाँ हाँ, ऊपर में पर शेयर लेके चलिए वैल्यू या फिर पूरा वैल्यू लेके चलिए, आंसर विल बी सेम, मैं बेसिकली पर शेयर लेके चलता हूँ टू मिनिमाइज माय कैलकुलेशन, ठीक है, अगर मैं ऑब्वियसली ऊपर में पूरा वैल्यू लेके चलना हो तो ऊपर में 500 नीचे में 500 इंटू कर देता, तो ऑब्वियसली तो दोनों कट जाएगा ना, ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे देखिए यहाँ पे पर आपका पर डिवेंचर का रेट नहीं दिया है, देन यू हैव टू टेक फुल वैल्यू, मैंने यहाँ पे दे दिया था पूरा डिवेंचर का रेट, ठीक है, तो हाँ मैं पर शेयर ले लिया था, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 10%, ये वाला 10% आ गया ना, दूसरा देखिए अगर इशूड एट पार है तो क्या मिलेगा, सिर्फ आईटीएस मिलेगा 35%, तो 10 इंटू 0.65 6.5% देखिए, ठीक है, तो आप किसी को ऐसे करना है तो हाँ ऐसे भी कर सकता है, 10,000 1 माइनस टी बाई 1,00,000, आंसर वुड बी 6.5%, ठीक है, किसी को ऐसे टाइम पास करना है तो, ठीक है, एक काम कीजिएगा, नेक्स्ट ये 2 सम्स आप लोग घर से करके रहेंगे, एक ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ओके ठीक है sir, ठीक है, यहाँ पे एक Okay, बार पढ़ लेते हैं, केपीएम इशूड 12% इरिडीमेबल डिबेंचर एट 105, 5% प्रीमियम लिख रहा है ना, और 5 प्रीमियम का सम्स करवा चुका हूँ अभी, ठीक है, हाँ टू देयर पार वैल्यू ऑफ 100, द करंट मार्केट प्राइस दे दिया है 95, कंपनीज पे कॉर्पोरेट टैक्स कितना 35%, व्हाट करंट कॉस्ट ऑफ द डिबेंचर, हो जाएगा, यस ठीक है, आप डिबेंचर का सम्स खोज के एक बार कर लीजिएगा, ठीक है, इलस्ट्रेशन जो होगा वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, क्लास क्लोज करें, ओके सर ओके सर, ओके सर। डिबेंचर का सम्स कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में केटी कराऊंगा, केटी एंड केपी,
ठीक है, ओके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और मैंने एक शीट शेयर किया था हाँ जीएसटी का, वो आप लोग देख लेना अगर ठीक है, मैंने चार्ट बनाया था। हाँ सर। ठीक है, ठीक है थैंक यू। थैंक यू।